Welcome to today's episode of the Be Sure podcast. Living with epilepsy involves challenges beyond seizures, including stigma and emotional impact. However, with the right treatment and adjustments, many people with epilepsy can lead active lives. To help us better understand this, we are fortunate to have a renowned consultant neurologist with extensive experience in treating epilepsy. Welcome, Doctor. Basically, epilepsy is a disorder, not a disease. Epilepsy characterized by unprovoked recurrent seizure. Okay. No, it is not a single seizure. Seizure is a disease, but epilepsy is a syndrome. epilepsy के लिए आपको एक से ज्यादा बार सीजर होना आवश्यक. Basically, there is abnormal excessive synchronous neuronal signal intensity, which affect the neurons that cause motor, sensory, or autonomous symptoms that affect the emotional, sensory, and motor disturbances. And it may be affect the loss of consciousness or altered consciousness. There are two type of seizures. One is partial seizure, second is generalized seizure. It is categorized by two. Generalized partial seizure may be categorized by two: simple partial seizure or complex partial seizure. Simple partial seizure basically that may affect the one part of brain, or generalized seizure it affect the both hemisphere. So then simple partial seizure may be characterized by loss of consciousness or not loss of consciousness. It may be Yeah. present So, with aura or without aura. Aura means there is a photophobia, photopsia, yeah. loss of emotional lability, and fear, anxiety, angerness, fever. What is epilepsy? Epilepsy basically it is syndromal that affect the neuronal activity. Basically, it is a electric discharge, excessive electric discharge in the brain, which may affect the motor, sensory, or autonomic symptoms. Patient in this category, patient may be loss of consciousness or not. It is categorized by tonic-clonic seizure, myoclonic seizure, absence seizure, and other type of seizures. I see. Now, can you explain what causes epilepsy? Is there always a known cause? से बेसिकली दो कारणों से हो सकते हैं. ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दो टाइप से एपिलेप्सी हो सकती है. अच्छा, एपिलेप्सी के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, भौतिक और नॉन भौतिक भी हो सकता है. भौतिक कारण में जैसे है कि आपका ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हेड इंजरी हो गई है, एंड अदर इन्फेक्शियस कॉजेज जैसे होते हैं, जैसे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है. ये सब अन्य कारण होते हैं जो ब्रेन इंजरी करते हैं, ये फोकल पॉइंट बनाते हैं जिससे फोकल सीजर आ सकते हैं या जनरलाइज हो सकते हैं. दोनों बोथ हेमीस्फीयर, ब्रेन के बोथ हेमीस्फीयर इन्वॉल्व हो सकते हैं. और नॉन भौतिक कारण में ऐसा होता है कि कई बच्चे होते हैं जन्म के समय सेरेब्रल पाल्सी होती है, हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी होती है, एंड सिस्टिक इंसेफेलोमलेसिया होता है जिसमें सिस्ट बन जाती है, पोरेंसेफेलिक सिस्ट हो जाती है. उनके कारण और ग्लाइटिक चेंजेस हो जाते हैं, कई हेड ट्रॉमा के बाद ग्लाइटिक चेंजेस हो जाते हैं, कई जन्मजात कंजेनाइटल ग्लाइटिक चेंजेस हो जाते हैं, जिसके कारण एपिलेप्सी के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो तो हमको कोई होते हैं साइकोजेनिक एपिलेप्सी हो जाती है. साइकोजेनिक एपिलेप्सी बेसिकली स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं, इमोशनल लेबिलिटी होती है, स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं. साइकोटिक कई साइटिक डिसऑर्डर में होते हैं. और जो जीरियाटिक पेशेंट होते हैं, जैसे ओल्ड एज पेशेंट होते हैं 60 साल से ऊपर, उनमें भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स बढ़ जाते हैं, उसके कारण भी एपिलेप्सी आ सकती है. Well, that's really helpful to understand. Well, what are some of the signs or symptoms of epilepsy that caregivers should look out for? जी जी जी. एपिलेप्सी को सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है और आई विटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है.
जिसने कोई भी पेशेंट अगर एपिलेप्सी का है तो सबसे पहले उसके फैमिली मेंबर्स को आपको कि आप आई विटनेस हैं, किस टाइप की एपिलेप्सी आई है, कैसे आ रहे थे उसको चूजा, या तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें या फिर वो एक्सप्लेन करें फैमिली मेंबर्स उस चीज़ के लिए। क्योंकि दो टाइप की एपिलेप्सी हो सकती है, एक साइकोजेनिक हो सकती है या फिर एपिलेप्सी हो सकती है। साइकोजेनिक एपिलेप्सी बेसिकली रॉन्ग डायग्नोसिस, एपिलेप्सी का रॉन्ग डायग्नोसिस नहीं बनना चाहिए। आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ एपिलेप्सी देन वी शुड स्टार्ट द एंटीएपिलेप्टिक ड्रग्स। विदाउट कंफर्मेशन वी शुड नॉट स्टार्ट द एंटीएपिलेप्टिक ड्रग। तो अपन को सबसे पहले हम लोगों को साइकोजेनिक और एपिलेप्सी को डिफरेंशिएट करना चाहिए। एपिलेप्सी बेसिकली टोनिक क्लोनिक सीजर होते हैं, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर होते हैं। उसमें पहले आदमी के हाथ पैर में अकड़न आती है, फिर उसके बाद रिलैक्सेशन होता है, फिर उसको जर्क स्टार्ट होते हैं, जर्क के बाद उसको अल्टर सेंसोरियम होता है, फ्रदिंग होती है। जिस एरिया में एपिलेप्सी फोकस है उस एरिया के सिम्टम्स आ सकते हैं। सपोज पेराइटल लोब का अगर एपिलेप्सी है तो उसको वीकनेस आ जाएगी राइट साइड में, हेमीपेरेसिस हो जाएगा, हेमीप्लेजिया हो जाएगा, वर्बल अफेजिया, वर्बल अफेजिया हो जाएगा, मोटर अफेजिया हो जाएगा, सेंसरी अफेजिया हो जाएगा। तो एरिया को डिपेंड करना था। टोनिक क्लोनिक सीजर यही होते हैं। और मायोक्लिनिक सीजर में सिंपल जर्की मूवमेंट होता है, उसमें भी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है। एब्सेंट सीजर में आदमी सडन ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, आधे सेकंड या 1 मिनट के लिए, फिर कॉन्शियसनेस तो गेन कर लेता है। आफ्टर सीजर पेशेंट को पोस्ट इक्टल ड्राउजीनेस हो सकती है, पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन हो सकता है, पोस्ट इक्टल स्लीपीनेस हो सकती है और हेडेक हो सकता है पोस्ट इक्टल। बेसिकली सीजर 1 से 2 मिनट के बीच 1 से 2 मिनट के लिए आते हैं, लेकिन जो साइकोजेनिक सीजर होते हैं वो बेसिकली मिनट टू आवर्स रहते हैं। उसमें पेल्विक थ्रस्ट रहता है, हैंड रिगनिंग होती है साइकोजेनिक सीजर में। इसलिए एपिलेप्सी की डायग्नोसिस बेसिकली क्लिनिकली होना चाहिए। Now let's talk about something that many people with epilepsy face: stigma. Can you tell us why epilepsy is often misunderstood? बेसिकली एपिलेप्सी को जनरली जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं, वो जनरली उनको अवेयरनेस बढ़नी चाहिए कि किस टाइप की एपिलेप्सी है, कैसी एपिलेप्सी है। झटके जब आते हैं तुरंत उनको मालूम होना चाहिए और कंसल्ट डॉक्टर के पास उनको जाना चाहिए। बेसिकली इसकी जो थेरेपी होती है, ट्रीटमेंट पार्ट जो होता है, बेसिकली जल्दी से जल्दी उसको डायग्नोस करके शुरू करना चाहिए। डायग्नोसिस में उसके सबसे पहले उसका क्लिनिकल हिस्ट्री लेना चाहिए, उसके बाद उसका ईईजी होता है, ईईजी करवाना चाहिए, फिर उसके बाद एमआरआई सीटी स्कैन से उसमें फोकाई आपको देखना चाहिए। फोकाई देखने के बाद आपका ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट बेसिकली मोनोथेरेपी से स्टार्ट करना चाहिए, सिंगल ड्रग से। पहले लो डोज से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे उसको हाई डोज तक ले जाएं, ठीक है। और फिर अगर उससे कंट्रोल नहीं होता है मोनोथेरेपी से, देन स्टार्ट द अदर मोनोथेरेपी ट्रीटमेंट, चेंज द एंटीएपिलेप्टिक, बट मोनोथेरेपी से ही स्टार्ट करें। अगर 2 से ठीक नहीं हो रहा तब उसको तीसरी ड्रग थेरापेटिक डोज, जब तक वो टॉलरेट कर ले, उसके साइड इफेक्ट ना आ जाए, जब तक टॉलरेट कर ले जाए तब तक उसको डोज बढ़ाते रहते हैं, डोज एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता तो उसको रिकमेंड फॉर वीडियो ईईजी देन सीजर सर्जरी। तो बेसिकली मैं अवेयरनेस के लिए पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव्स को मेरा यही सुझाव है कि एपिलेप्सी लाइलाज बीमारी नहीं है। बेसिकली आप आदमी मतलब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग खाते भी आदमी नॉर्मल रह सकता है, अपना रूटीन लाइफ फॉलो कर सकता है, रूटीन जॉब कर सकता है, रूटीन लाइफ कर सकता है, सब कुछ रूटीन रह सकता है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। Thank you, Doctor. And thank you to our listeners. Until next time, take care and stay informed.